Assalamualaikum, I am Sim Hazar and today I am presenting you introduction and implementation of serial communication of Atmega 328P. Main objective of these lab are understand the function of serial port in microcontroller and learn different mode of operation of serial port. We will differentiate between USART and UART. Um, what are these terms? We will see and implementing the circuit on Proteus. Okay. Next, we have equipment and software like we used last time, and introduction is कि हमारे पास जो embedded system होते हैं, it means जो हमारे पास embedded system में actually embedded system is all about interlinking circuits that consist of processor or other integrated circuit to create a symbiotic system. Uh, In order for these individual circuit to swap their information, they must share a common communication protocol. कि जब भी हम एक एम्बेडेड सिस्टम बनाएं तो उसमें जो है एक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल जो हो वो कॉमन कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल हो. Hundreds of communication protocols have been defined to achieve this data exchange, and in general, each can be separated into one to two categories: parallel or serial. हमारी जो मोस्टली माइक्रो कंट्रोलर में जो हम कर रहे होते हैं अभी तक वो पैरेलल कर रहे हैं. मतलब डाटा जा रहा है एक बिट, मतलब पैरेलल डाटा जा रहा है. मीन वी यूज 8 बिट्स, तो 8 बिट पे हर बिट पे अपना अपना डाटा कंटिन्यूसली जा रहा है. बट सीरियल में सिंपली अगर मैं समझा सकूं तो सीरियल में ये होगा कि हमारे पास कोई दो लाइंस होंगी या एक लाइन हो, दो हो. इस पे मेनली दो होती हैं, एक ट्रांसमीटर और एक रिसीवर. तो ट्रांसमीटर ट्रांसमिटिंग बाय विद सीरीज इन सीरीज डाटा एक सीरीज में जा रहा है, नॉट पैरेलल के एक ही टाइम पे सारी सारी बिट्स जा रही हैं, बट एक टाइम पे एक बिट और वो सीरीज में जा रही है. इसी तरह वो रिसीव और ट्रांसमिट होती हैं. ठीक है जी. लाइक वी हैव हेयर आई सी मैक्स 332 और आर एस 232. तो यहाँ पे हमारे पास आर एक्स और टी एक्स जो है वो पिन है, और माइक्रो कंट्रोलर में भी इसी तरह टी एक्स और आर एस, जो इसकी रिसीवर होगी वो उसकी ट्रांसमीटर होगी और इसकी जो ट्रांसमीटर होगी वो उसकी रिसीवर होगी. तो हमारा जो डाटा है वो इस तरह से विद सीरियल में कन्वर्ट होता है. पैरेलल इंटरफेस ट्रांसफर मल्टीपल बिट एट द सेम टाइम. पैरेलल में हमारे पास जो मल्टीपल बिट्स हैं वो एट द सेम टाइम ट्रेवल कर रही होंगी, बट दे यूजली ब्रेक बसेस ऑफ डाटा ट्रांसमिटिंग अक्रॉस 8 16 और मोर वायर्स. डाटा इज ट्रांसफर इन ह्यूज क्रैशिंग वेव्स ऑफ वंस एंड ऑल्स. जैसा कि हमारे पास 1 और 0 में जो है ना वो डाटा जा रहा होता है पैरेलल में, और ह्यूज डाटा एट द सेम टाइम जा रहा है. The main difference between a serial and a parallel port is that a serial port transmit data one bit after another, while a parallel port transmit all bit of 8 bits of a byte in parallel. Computers have both serial and parallel ports along with their neural technology called a USB Universal Serial Bus. तो हम उसमें parallel भी कर सकते हैं, हम उसमें serial भी कर सकते हैं. हम यहाँ पे कुछ देख सकते हैं. देखिए जी, ये ट्रांसमीटर है, ये रिसीवर है, ये उसकी जो है ना जी एम एस पी और एल एस पी बिट्स हैं. ठीक है जी, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स. तो डाटा सीरीज में जा रहा है विद क्लॉक, सीरीज में जो है वो हमारे पास जा रहा है. लेकिन पैरेलल कम्युनिकेशन में एट द सेम टाइम वी नीड 8 लाइंस, ताकि 8 बिट को हम सेंड कर सकें एट द सेम टाइम. Difference between serial and parallel ports are like external interfacing used for connecting computer peripherals that require relatively high bandwidth हमें चाहिए होगी. सीरियल में ये होगा कि हमारे पास connecting serial lines to facilitate serial communications can move set of 8 bits at the same time, but these bits are sent one at a time in single stream of ones and also along a side of a single wire. Speed of transmission is higher because they are capable of delivering multiple streams of data. Several ports are relatively slower in terms of transmission speed. More wires are used in parallel communication. Lesser number of wires are used for serial port communications. ठीक है जी. And the difference is like we used for a variety of devices including printer, optical devices, scanners, external CD-ROMs. But in serial we used to connect devices such as security cameras, flat screen monitors, GPS receiver, telescope, power inverters. So both have its uses and its advantages and disadvantages.
And here we have parallel interface and serial interface differentiation. Next, serial communication terminologies: synchronous and asynchronous. In serial communication, the transmitting and receiving device must be synchronized to one another and use a common data rate and protocol. अब ऐसा नहीं हो सकता है कि हमारी जो एक डिवाइस है जो ट्रांसमिट कर रही है और एक रिसीव कर रही है। अब अगर वो कॉमन डाटा रेट और प्रोटोकॉल पे सिंक्रोनाइज नहीं है, अगर उनका एक बॉड रेट नहीं है और अगर उनकी एक सिंक्रोनाइजेशन नहीं हुई, तो फिर हमारे लिए डाटा ट्रांसमिट करना में बहुत इशू बन जाएंगे। मिसाल के तौर पे अगर हमारा माइक्रो कंट्रोलर जो है उसकी स्पीड 16 मेगाहर्ट्ज़ है और आप जो ट्रांसमिट कर रहे हैं डाटा वो 8 और या 6 मेगाहर्ट्ज़ का है, तो वो तो बहुत स्लो बिट्स जो है ट्रांसफ़र कर रहे हैं और ये तो उसे बहुत जल्दी जो है ना वो इन मिली सेकंड्स में जो है ना वो गेन कर रहा है। तो कुछ डाटा जाएगा, कुछ नहीं जाएगा या बहुत स्लो डाटा ट्रांसफ़र होगा। और इसी तरह अगर कोई ट्रांसमीटर जो है वो इतना तेज़ है, उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, वो सिंक्रोनाइज़ेशन उसकी ज़्यादा है, तो वो और रिसीवर की कम है, तो कुछ बिट्स स्किप हो जाएँगी, कुछ रिसीव होंगी, कुछ नहीं होंगी, तो डाटा नहीं हमारा ट्रांसफ़र नहीं हो सकेगा। Synchronization allows both the transmitter and receiver to be expecting data transmission, reception at the same time. There are two basic methods of maintaining synchronization between the transmitter and receiver: asynchronous and synchronous. In asynchronous serial communication system, such as you sought about the at Mega 16, framing bits are used at the beginning and end of a data byte. These framing bits alert the receiver that an incoming data byte has arrived and also signal of the completion of the data byte's reception. तो हमारे पास कुछ फ्रेमिंग बिट्स होंगी, वो फ्रेमिंग बिट्स बता देंगी कि भाई कुछ ना कुछ डाटा आ रहा है और इसी तरह से जब वो डाटा खत्म होगा तो तब भी कोई फ्रेमिंग बिट्स होंगी बिगिनिंग पर भी और लास्ट में भी, और वो बता देंगे कि जी अब खत्म हो गया, तो ये हमारा डाटा इस तरह से चलता है। सिंक्रोनाइज में होगा कि system maintains sync between the transmitter and receiver by employing a common clock between two devices. Data bits are sent and received on the edge of the clock. जैसे कि हमने पहले बात की कि एक क्लॉक के मुताबिक वो सिंक्रोनाइज्ड होंगी और उस पे हमें जो है ना वो डाटा हम ट्रांसफर करे होंगे। The allowed data transfer rate higher than with an asynchronous technique but require two lines, data and clock to connect the receiver and transmitter. तो इसमें हमें 2 वायर चाहिए होंगी, 2 लाइन्स चाहिए होंगी, डाटा की भी और क्लॉक की भी एसिंक्रोनस में। और एसिंक्रोनस में ये होगा कि हमें सिर्फ डाटा की चाहिए होगी, लेकिन ये है कि थोड़ा फास्ट होगा, वो स्लो होगा। ठीक है जी, ये हमारी अपनी रिक्वायरमेंट पे। अच्छा, डुप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड जो है वो जी 3 तरह के होंगे: सिंप्लेक्स मोड, हाफ डुप्लेक्स मोड, फुल डुप्लेक्स मोड। सिंप्लेक्स मोड में क्या होगा? सेपरेट लाइन फॉर ट्रांसमिशन एंड रिसीव रिसेप्शन। सिंप्लेक्स है हमारे पास जो है ना जी रिसीवर और ट्रांसमीटर हैं। सिंप्लेक्स में सिर्फ एक लाइन होगी जो ट्रांसमिशन भी करेगी और रिसेप्शन भी होगी, और एक टाइम पे एक ही काम हो रहा होगा, रिसेप्शन भी और ट्रांसमिशन भी। हाफ डुप्लेक्स कैन ट्रांसमिट और रिसीव बट वन एट अ टाइम। ये हमारे पास जी हाफ डुप्लेक्स है, उनके लिए रिसीवर और जो है ना जी ट्रांसमीटर के लिए दो दो लाइन है, बट वन एट अ टाइम। दोनों काम कर सकता है वो, ट्रांसमिट भी और रिसीव भी, बट वन एट अ टाइम। ठीक है जी। फुल डुप्लेक्स में ये होगा कि ट्रांसमिट एंड रिसीव सिमुलेटेनियसली हो सकता है। हमारे पास दो लाइंस हैं और उन पे ट्रांसमिट भी हो रहा है, रिसीव भी हो रहा है। पोर्ट रेट, data transmission rates are typically specified as a baud rate or bits per second rate. For example, 9600 baud indicate that our data are being transferred at 9600 bits per second. सिंपली कि जो जिस बिट पर सेकंड पे हमारा डाटा ट्रांसफर हो रहा होगा उसे हम baud rate कहते हैं। Non-return to zero coding format. There are many different coding standards used within serial communication. The important point is that transmitter and receiver must use a common coding standard so data may be interpreted correctly at the receiving end. The Atmel Mega 16 uses a non-return to zero coding standard. In a non-return to zero coding, a logic 1 is signaled by logic high during the entire time slot allocated for a single bit, whereas a logic 0 is signaled by logic low during the entire time slot allocated for a single bit. Parity further enhanced data integrity during transmission. Parity technique may be used. Parity after like additional bit that may be transmitted to the data bytes. At Mega 16 uses a single parity bit, and with the single parity bit, a single bit error may be detected. Parity may be even or odd. In even parity, parity is set 1 to 1 or 0.
use that number of ones in the data byte, including the parity bit is even. In odd parity, the parity bit is set to 1 or 0, set as the number of ones in the data byte. प्रोटोकॉल सीरियल कम्युनिकेशन के AVR में तीन तरह के हम यूज करेंगे. USART, इट मींस यूनिवर्सल सिंक्रोनस एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन. SPI, serial peripheral interface, और TWI, twin wire interface और inter integrated circuit, IIC और I2C. ठीक है जी. USART और UART स्टैंड फॉर यूनिवर्सल एसिंक्रोनस रिसीवर ट्रांसमीटर. हमारे पास जो हमने आगे देखा, asynchronous universal receiver transmitter, from name itself it is clear that it's asynchronous. Data bits are not synchronized with the clock pulse. USART stand for universal synchronous asynchronous receiver transmitter. This is of synchronous type. तो ये हमारे पास एक synchronous type का होगा. Data bit are synchronized with clock pulses. You refer to USART selection in the data sheet of any AVR microcontroller. You will find several features listed here: full duplex operation, asynchronous और synchronous, master और slave clock. तो ये हमारे पास कुछ ऑपरेशन होंगे जिनको हम परफॉर्म कर सकेंगे. ठीक है जी. ये उसका कुछ UART का एक हमें दिखाया गया है. USB के साथ हम किस तरह से लेवल शिफ्ट ट्रांसमीटर रिसीवर लगे होंगे. UART की कोई पेरिफेरल जो है ना जी हमारे पास IC होगी, तो उसके जरिए से हम डाटा ट्रांसमिट और रिसीव कर सकते हैं. USART में जनरली हम हमारे पास जो करेक्टरिस्टिक होंगी वो कुछ इस तरह से होगी. फर्स्ट स्टेप इज टू सेट द बॉड रेट इन बोथ द मास्टर एंड स्लेव. मास्टर और स्लेव दोनों में हमें रखना होगा बॉड रेट, और बॉड रेट हैज टू बी सेम फॉर बोथ. वही बात कि बॉड रेट अगर सेम होगा तो डाटा भी सिंक्रोनाइज होके एट द सेम टाइम सेम डाटा रिसीव और ट्रांसमिट हो रहा होगा. Set the number of data bit which need to be sent. Get the buffer ready in case of transmission from AVR to some other device. Load it with the data to be sent. Whereas in case of reception, save the previous data. Then enable the transmitter receiver according to the desired usage. ठीक है जी. USART पिन कॉन्फ़िगरेशन में हम देख सकते हैं कि RXT, TXT और XC के पिन होंगी. ये एटमेगा की पिन यहाँ पे बताई गई हैं 2, 3, 6, और एटमेगा 16 में 32 पिन, पिन 14 और 16 और पिन 15 और पिन 1. ठीक है जी. एटमेगा 8 बिट में ये है, 16 और 32 बिट में ये वाली पिन्स होंगी. मोड ऑफ ऑपरेशन एसिंक्रोनस एंड नॉर्मल मोड, एसिंक्रोनस डबल स्पीड मोड और सिंक्रोनस मोड, ये तीन उसके मोड होंगे. बॉड रेट जनरेशन जो है जी हमारे पास 16 बिट के लिए इस तरह से हमारे पास गिवन है डाटा शीट में. और UBBR रजिस्टर जो है वो इसके लिए स्पेसिफिकली यूज होता है, और उसका बॉड रेट हम तीनों मोड के लिए इस तरह से निकाल सकते हैं. ठीक है जी. UBBR रजिस्टर की वैल्यू अगर हमें कैलकुलेट करनी होगी तो हम इस तरह से बॉड रेट यूज करेंगे और हम UBBR की वैल्यू निकाल सकते हैं. रजिस्टर डिस्क्रिप्शन जो है जी हमें सारी यहाँ पे गिवन है. और इसके बाद जो हमारे यहाँ पे टास्क हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि हमें डिस्प्ले करवाना होगा बटन प्रेस्ड ऑन द हेक्स कीपैड कनेक्टेड विद वन माइक्रो कंट्रोलर ऑन द सेवन सेगमेंट कनेक्टेड टू द अदर माइक्रो कंट्रोलर यूजिंग USART प्रोटोकॉल्स. तो हमारे पास जो है वो जब हम बटन प्रेस करें हेक्स कीपैड पे, वो जो कनेक्टेड हो माइक्रो कंट्रोलर का, तो वो सेवन सेगमेंट के साथ जो है कनेक्टेड अदर माइक्रो कंट्रोलर यूजिंग USART प्रोटोकॉल. तो उसकी जो हमारे पास कोड है वो कुछ इस तरह से है कि हम जो है वो अपनी लाइब्रेरीज इंक्लूड करवाते हैं. SPI मास्टर फंक्शन के लिए हमने void के 2 फंक्शन बना लिए. ठीक है जी. हमने 3 जो है SS और MISO और MOSI की डिफाइन कर दी पिन्स. ठीक है जी. डेटाबेस का एक एरे बनाया जिसमें हमने सारी जो अपनी डिजिट्स और अरिथमेटिक ऑप्शंस हैं उनको क्लियर कर दिया. हमने 4 कैरेक्टर्स A1, A2, A3, 4 डिक्लेयर किए. उसके बाद हमने सर्च का एक ऑपरेशन फंक्शन डिक्लेयर किया. कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर किए R1, C1 और X. पोर्ट D और पोर्ट DDRD और पोर्ट D को हमने डिटेक्ट कर दिया आउटपुट, लेकिन 0x0F पर. और देन हमने उसकी जो है रीडिंग फ्रॉम इनपुट फ्रॉम पोर्ट D लूप लगाई. हम पोर्ट D से इनपुट कर रहे हैं. अगर पोर्ट D की वैल्यू ये है तो वहाँ पे वो ब्रेक कर दें. अदरवाइज पोर्ट D को पर 0xEF कर दें और X को दोबारा से वो पिन जो है वो रीड करना शुरू कर दें.
कंपेयर वैल्यू की फॉर की प्रेस्ड, जो भी हमारे पास की प्रेस्ड होगी उसके लिए हम वही सेम जो कैलकुलेटर में हम करते हैं वो वैल्यूज़ कंपेयर करेंगे और उसको जो है यूसा अपनी डाटा की मदद से जो हमने सेंड डाटा किया हुआ है उसको यूज़ करते हुए कर लेंगे। फॉर आरएक्स हमारे पास कुछ इस तरह से होगा कि हम इसको spi.h इंक्लूड करवाएँगे, जो हमने हेडर फाइल बनाई थी और देख लेंगे कि DDRB1 MISO हो और रिसीव करें इनिशियलाइज़ करने के बाद और फिर वो उसे ट्रांसमिट करें और रिसीव करें डाटा को और मतलब रिसीव यहाँ पर ऑप्शन होगा और ट्रांसमिट के लिए हमारे पास अ, ये वाला ऑप्शन होगा RX और TX का। कोड मतलब ट्रांसमिट के लिए हम अलग बना लेंगे एक हेड फाइल और रिसीव के लिए एक अलग बना लेंगे। ठीक है जी। और ये हमारे पास वो टास्क है कुछ इस तरह से कि हम इसमें अपना कैलकुलेटर एक्टिवेट करेंगे तो 2 माइक्रो कंट्रोलर के साथ लगा हुआ है। एक माइक्रो कंट्रोलर के साथ हमारा कैलकुलेटर कनेक्टेड है। वो माइक्रो कंट्रोलर दूसरे माइक्रो कंट्रोलर की जो है ना जी TX और RX के साथ है सीरियल कम्युनिकेशन और उसका डाटा हम एलसीडी पे शो करवा देंगे। तो ये एक कोड था जिसमें हमने यूआर्ट कम्युनिकेशन देख ली। ठीक है जी। तो इसमें हमने सीरियल कम्युनिकेशन के बारे में देखा, समझा और आई होप कि आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।